Hey, I'm Sovita Brothamandal. Today I will talk about combustion and flames. All of us need energy. Energy for walking, energy for talking, energy for sleeping, and energy for everything, each and everything for in our life. If I want to go from this place to the other place, I need energy. Of the various ways in which we obtain energy, the most common is by burning the substances like coal, wood, petrol, diesel, kerosene, natural gas, and LPG, and collectively these are known as fuels. By burning a fuel, we obtain heat, that is the thermal energy, often accompanied by light. So, first of all, let us understand what is combustion. Thermal energy is the most common form of energy that the mankind is able to use, and this is generally obtained by combustion. So, when a substance combines fast with oxygen, giving out heat and light, the phenomenon is known as combustion. When a substance combines fast with oxygen, giving out heat and light, the phenomenon is known as combustion. Thus, combustion involves the burning of certain substances. You might have seen that a paper is burning, and when it is burning, you need to give it some heat, and then it will start burning. And when it will start burning, it is a chemical reaction is taking place. That substance is taking ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हवा में जो ऑक्सीजन है उसको ले रहा है और उसके बाद वो जल रहा है, उसमें जो सब्सटेंस है वो जल रहा है. सो जो भी एलिमेंट है उस सब्सटेंस में वो जलेगा और उसका ऑक्साइड बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोल, then it will burn with the help of oxygen and it will produce कार्बन डाइऑक्साइड. अगर सल्फर है कोयला के अंदर तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और SO2 बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा. अगर नाइट्रोजन है तो वो हवा का जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा. अब है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सब चीज जलता है? नो, सब चीज नहीं जलता है. कुछ चीज जलता है, कुछ चीज नहीं जलता है. A substance that undergoes combustion, it is known as combustible substances. The substance which undergoes combustion, the substance which burns, the substance which undergoes combustion is said to be combustible substance. For example, wood, coal, petrol, diesel, natural gas, petroleum gas are all combustible substance. और अगर तुमको पूछा जाए कि नॉन कम्बसेबल सब्सटेंस क्या है, जो जलता नहीं है, सीधा एग्जांपल आंख के सामने है, कांच. इसको जलाओ, नहीं जलेगा. ओके. सो these things which are combustible, these are basically fuels. So thus wood, coal, petrol, diesel, kerosene, wax, etc., etc., all are fuels, and all these contain some part of it, partially or fully. It is having the free or combined state of carbon. So these are all carbon based fuel. तो क्या दुनिया का अंत यही हो गया? No. There is another fuel which is very important for us, for India, because हम लोग अभी कार्बन बेस्ड फ्यूल या हाइड्रोकार्बन्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, एंड दैट इज नोन एज, दैट इज द ग्रीन हाइड्रोजन, जो ऑलरेडी बस का फ्यूल के रूप में ऑलरेडी आ गया है और भविष्य में ये बुरी तरह से आएगा, बुरी तरह से छा जाएगा. तो इसलिए पूरा दुनिया बदलने जा रहा है इसके कारण, ग्रीन हाइड्रोजन के कारण. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को सोचना है कि जब कोई चीज जलता है तो जलने के लिए क्या क्या चीज चाहिए. तो सबसे पहला चीज चाहिए, मान लो कोई एक चीज, कागज जल रहा है, सपोज समथिंग इज बर्निंग. ओके, एक मोमबत्ती जल रहा है, मैं एक
बड़ा सा कांच का ग्लास लिया, उस छोटे से मोमबत्ती को ऊपर ढक दिया, क्या वो जलता रहेगा? नहीं। क्यों जलता हुआ नहीं रहेगा? क्योंकि वो तभी तक जलता हुआ रहेगा, एकदम तुरंत बंद नहीं होगा, तभी तक जलता रहेगा जब तक उस ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाता। जब ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, तब वो जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तुम लोग देखे होगे कि आग, जब किसी को आग लगता है तो हम लोग उसको कंबल से लपेट देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये चेष्टा करते हैं कि हवा में जो ऑक्सीजन है उससे कनेक्शन उसका कट ऑफ हो जाए, और जो आग लगा हुआ है, जो जलना है, जलने में जो सहायता कर रहा है ऑक्सीजन, उससे कनेक्शन कट ऑफ हो जाए। तो यहाँ का जो कंसेप्ट है वो है सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या है ना? ए सपोर्टर ऑफ कंबशन इज अ सब्सटेंस whose presence is essential for the combustion of any fuel or any combustible substance, जिसका रहना बहुत जरूरी है। A supporter of combustion is a substance whose presence is essential for the combustion of another substance. For all those substances that burn in air, oxygen is the supporter of combustion. Carbon dioxide is generally behaves as a non-supporter of combustion. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज कभी भी जलने के लिए चाहिए वो है इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट टू विच ए सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड before combustion takes place is called its ignition temperature। मतलब किसी भी सब्सटेंस को अगर जलाना है तो उससे पहले उसको हीट करना होगा, तब तक उसको हीट करना होगा उस ज्वलनशील पदार्थ को, या जो कंबशेबल सब्सटेंस, उसको तब तक हीट करना होगा जब तक वो सब्सटेंस जो जलेगा वो अपना इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच रहा है। एक मजेदार चीज कर सकते हैं, जो चाय पीते हैं, कागज का जो कप्स होता है, उसको तुम क्या करो, ऐसे एक माचिस का तीली लो, उसमें आग दो, वो जलने लगेगा। ठीक। अब तुम क्या करो, उस उसी कागज में पूरा पानी भर दो चारों तरफ से, और उसके बाद उसको तुम माचिस का तीली दिखाओ, क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? न उसको जलने के लिए जो हीट चाहिए था, वो हीट कहाँ जा रहा है? वो वाटर को वेपर बनाने में खर्चा हो जा रहा है। मतलब उस कागज को कभी भी अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने नहीं दे रहा है, इसलिए इसलिए वो नहीं जल रहा है। अब एक और चीज हम लोग को जानना चाहिए, वो दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। कौन सा फ्यूल ज्यादा एनर्जी देगा? कोयला देगा, ना काउडंग देगा, ना ऊंट देगा, कौन देगा? तो सबसे पहले कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? तो कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन इस तरह से हम बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट बाय यूनिट मास ऑफ ए फ्यूल ऑन कंप्लीट कंबशन इन एयर और ऑक्सीजन इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट ऑफ हीट, हीट का वो अमाउंट गिवन आउट, निकाला गया है, बाय यूनिट मास, 1 किलो, 1 ग्राम, यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, 1 किलो कोयला, ऑन कंप्लीट कंबशन, जब वो पूरी तरह से जल जाएगा, किसमें? ना हवा में या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो जितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उस एनर्जी को हम लोग उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा? किलो जूल्स पर ग्राम। एक यूनिट बोल दिए, किलो जूल्स पर ग्राम। तो अगर हम लोग देखें, वुड, कोयला, काउडंग, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा? कौन जलने से, 1 ग्राम जलने से ज्यादा हीट देगा? पेट्रोल। ठीक है। सबसे ज्यादा अब हाइड्रोजन और डीजल में अगर कंपेयर करें तो हाइड्रोजन ज्यादा एनर्जी देगा, इसीलिए भविष्य जो है इसका इसी तरफ जा रहा है। ओके, थैंक्स। सो नाउ आई स्टॉप।